Hello, ninth standard. I hope you all are studying well in all your videos, with all your videos and all. In our social studies, that is first lesson of your civics, eighth lesson from your textbook. We already started explanation and all. Okay, many videos are uploaded, and today I'll be doing the remaining part of that lesson. Okay, these many topics are left out with that lesson. So heading and all is accordingly given. That is continue lesson number 8 of social studies. Understood? Okay. So if you have skipped any video, please see that you go through all the videos of this lesson, as this is first lesson of your civics. So it is very important for you. Okay. Let us start with page number 16. We have 4 topics on page number 16. So let's finish with that. First one is residuary powers. Residuary powers क्या होते हैं? Like on page number 60 we had studied union list, state list and concurrent list. यूनियन लिस्ट में दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर्स होती हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया. देन स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट आर हैविंग विच सब्जेक्ट्स अंडर देम, वी स्टडीड अबाउट दैट. कॉन्करेंट लिस्ट दैट इज बोथ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों किस तरह से कंबाइनिंगली काम करते हैं, दैट ऑल्सो वी स्टडीड, राइट. रेसिड्यूअल पावर्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सब्जेक्ट्स में नहीं है. ओके, दैट इज सम पावर्स विच आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. If I study in this, let us study the subject which are not specifically allotted to union or state are included in residuary powers. Matters that are not included in the division of power are known as residuary powers. वो matters जिसमें पावर की, पॉलिटिक्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो matters residuary powers में included है. The central government is given the power to legislate on these residuary subject. Legislate मतलब official work. See, usually power दोनों के पास नहीं होती, but yes, अगर official work करना है इस power का, तो that is in hand of central government, not with state government. Okay, then the financial distribution of resources is done between यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. दैट इज़ अब ऐसे जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें ज़्यादा ना स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकते हैं, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकते हैं, तो उन लोगों का जो मतलब वो प्रोजेक्ट्स के लिए जो फाइनेंस चाहिए, जो मनी चाहिए, दैट इज़ ग्रांटेड, बट इट इज़ ग्रांटेड विद एग्रीमेंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ. Then excise and custom, export, import, income tax, all these major taxes are decided by central government, while sale tax, revenue tax, entertainment tax, education tax, which are having meager financial resources, are decided by state government. We all know our government is working with the collection of taxes only. टैक्सेस में से जो इनकम होती है वो इनकम गवर्नमेंट कंट्री डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट. तो उसी इनकम की बात करें तो विद दैट इनकम ओनली, ना उनमें से कौन सी इनकम है वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, कौन सी इनकम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करेगी, दैट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इन दीज 2-3 लाइन्स. ओके, विच काइंड ऑफ टैक्सेस आर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स वगैरह, ये सब डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशन टैक्स एक्सेट्रा, सेल्स टैक्स, ये सब जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं, एंड दे आर ओनली वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ टैक्सेस. फर्दर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस. सी, यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस मतलब यूनाइटेडली सब खड़े होते हैं अगर किसी भी स्टेट में कोई इमरजेंसी हो. ओके, फॉर एग्जांपल रिसेंटली अम्फान
storm was there in the West Bengal side and heavy damage to housing and residential areas it occurs, right? तो उस वक्त पूरा इंडिया साथ में था, दैट इज all state governments were together so that they can cover up the loss of that east side of India, whatever it occurred due to Amphan, right? तो उस वक्त जो इमरजेंसी में रेड अलर्ट कर देना, मतलब इमीडिएटली, लाइक रिसेंटली कोरोना की वजह से काफ़ी लॉकडाउन चला, राइट? काफ़ी टाइम लॉकडाउन रहा एंड दैट इज़ एमरजेंसी सिचुएशन. तो एमरजेंसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट इफ टेक सर्टेन डिसीजन, everyone means all states follows that decision unitedly. Okay, let us read. There are 3 provisions for emergency in Constitution of India. National emergency can be declared at the time of war, external attack or armed rebellion. That is, अगर कहीं वॉर हो या कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हो, एक्सटर्नली कोई बॉर्डर पर अटैक करे अचानक से, और ये भी तो एक्सटर्नल अटैक ही है, दिस इज़ व्हाट कोरोना गोइंग ऑन, राइट? तो इसकी वजह से भी जिस तरह से कंट्री में सिचुएशन हुई तो एमरजेंसी डिक्लेयर की गई, इमीडिएटली लॉकडाउन अनाउंस किया गया. ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, द स्टेट कैनॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड. सी, अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते, देन सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा हक है कि वो उस स्टेट में अपने अकॉर्डिंग रूल्स चलाना शुरू करें और एल्स एमरजेंसी डिक्लेयर करें. ओके, लाइक वी कैन टेल सडनली इफ ऑफ एनी स्टेट चीफ मिनिस्टर रिजाइन एंड इफ गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, टेक सम टाइम टू appoint new CM. So in the meanwhile, that time duration, the central government can cover up the whole role and they can control with certain emergency declaring in that particular state. Then, due to increase in prices, there is monetary value erosion at that, financial emergency is declared. सी, अब सेलेक्ट सपोज अम्फान में काफ़ी नुकसान हुआ, लैक्स ऑफ हाउसेज आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो सबके लिए मनी चाहिए. सो इफ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग दैट मच फाइनेंशियल पोजीशन, तो दे कैन आस्क हेल्प फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन go on with the financial need, financial help in emergency situation for that particular state progress. Okay, the central government has been given more power to deal with these emergencies. So central government ही ज़्यादातर ऐसे emergencies declare कर सकते हैं, not state government. At the time of emergency, India is almost turned into the unitary system. जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो इंडिया ऑलमोस्ट यूनाइटेडली इस इमरजेंसी की सिचुएशन को फेस करता है. ओके, थर्ड पॉइंट इज पार्लियामेंटरी सिस्टम. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट पार्लियामेंटरी सिस्टम, मतलब व्हाट? लेट अस टेक वन एग्जांपल. आप स्कूल तो जाते ही थे, होंगे भी, आप अभी भी जाओगे स्कूल आफ्टर फ्यू डेज, राइट? तो जब भी आप स्कूल जाते हो आपने देखा होगा कि टीचर्स वर्क इन डिफरेंट क्लासेस, but many times they used to sit in staff room and go on with certain discussion either with management of school or with other teachers and all, right? वो क्यों होता है? That is, अगर टीचर्स कहीं कंफ्यूज होते हैं या टीचर्स को कहीं कुछ रिक्वायरमेंट है या प्रॉब्लम है या मैनेजमेंट को कुछ अनाउंस करना है, एट दैट टाइम टीचर्स एंड मैनेजमेंट सिट फॉर मीटिंग, राइट? और जब मीटिंग के लिए बैठते हैं, दैट मीन्स एवरीवन गो ऑन विद देयर सजेशंस एंड ऑल. ओके, और जब सजेशंस देते हैं तो उनमें से मेजॉरिटी किस सजेशन के साथ है, दैट इज डिसाइडेड एंड लेटर ऑन फाइनली वन डिसीजन इज गिवन. अंडरस्टूड? वैसा ही सिस्टम है पार्लियामेंटरी सिस्टम, जिसमें सभी मिनिस्टर्स साथ बैठते हैं. There are 2 types of parliamentary system, actually 3. One is president rule है, okay, one is president, second is 2 houses, that is राज्य सभा and लोक सभा. Okay, अब राज्य सभा की बात करें तो over there राज्य सभा is a permanent house,
ओके, परमानेंट हाउस मतलब वहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं उनका टाइम ड्यूरेशन 6 इयर्स का है। 6 years they work for Rajya Sabha, and after every 2 years ministers are getting retirement from their Rajya Sabha's post। मतलब हर 2 साल के बाद राज्यसभा में किसी न किसी मिनिस्टर्स के 6 इयर्स पूरे होते हैं तो उनको रिटायर किया जाता है और उनकी जगह पर न्यू मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। दैट इज़ वर्किंग ऑफ राज्यसभा। ओके, बट टॉकिंग अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इन दोनों हाउसेज में दैट इज अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, इन दोनों राज्यों में जब मिनिस्टर्स मिलते हैं वो अपने एरिया की प्रॉब्लम डिक्लेयर करेंगे, अपने एरिया के लिए डेवलपमेंट के लिए अगर समथिंग दे नीड हेल्प फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, दे गो ऑन डिस्कसिंग विद दैट एंड देन दे फाइनली कम टू वन कंक्लूजन। ओके, सो मीटिंग और मीटिंग में डिसीजन लेना, इस तरह का काम होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेट अस रीड, इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। In the parliamentary system, the parliament is the supreme authority representing people. That is, ministers अपने अपने एरिया की तभी बात करेंगे जब उनको पता होगा कि हमारे एरिया में लोग पीसफुली रह रहे हैं या फिर लोगों को कोई प्रॉब्लम है, राइट। सो मिनिस्टर्स डिस्कस ऑल दीज इश्यूज इन पार्लियामेंट। द लेजिस्लेचर एट द यूनियन इज द पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर, सी पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं वो ज़्यादातर लेजिस्लेचर होते हैं। लेजिस्लेचर मतलब कौन से लोग जो ज़्यादातर पेपर वर्क करते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स बाहर काम करके इम्प्लीमेंट करते हैं। अंडरस्टूड? सो लेजिस्लेचर वाले जो मिनिस्टर्स हैं दे यूज टू सिट इन पार्लियामेंट एंड टेक सर्टेन डिसीजंस। ओके, द पार्लियामेंट इज बाइकैमरल, मीन्स इट हैज़ 2 houses, upper house and lower house. Upper house is called Rajya Sabha, lower house is known as Lok Sabha. Though the government is carried on in name of the president at the union and the governor in the state, actual administration is carried out by the council of ministers headed by the prime minister at the union and chief minister at the state. See, हम अगर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ें तो वी यूजुअली नो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नर इज द मेन हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। दैट इज प्राइम मिनिस्टर कोई भी डिसीजन ले वो प्रेसिडेंट से बिना पूछे डिसीजन नहीं लेंगे, और अगर चीफ मिनिस्टर कोई भी डिसीजन ले तो वो गवर्नर से बिना पूछे डिसीजन नहीं लेंगे। बट अलॉन्ग विद दीज 4 persons, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, chief minister and governor, apart from these 4 people there are cabinet ministers जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट में काम करने के लिए उनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ओके, सो जब ये अलॉटमेंट होता है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इक्वली रोल प्ले करते हैं टू मेंटेन सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। Understood? So in that case we can discuss, so in that case we can go with Lok Sabha and Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha and all. Okay, then moving ahead, let us continue with this only। अब cabinet ministers, that is councils of ministers जो हैं वो भी work करते हैं। Apart from that, the president select 12 people who are experts and experienced from various fields of Rajya Sabha. For Rajya Sabha, Rajya Sabha is the permanent house in which 1/3 members retire every 2 years. The same number of members for election. Okay, so हर 2 साल के बाद 1/3 member of Rajya Sabha retire होते हैं and later अपॉइंट भी होते हैं, दैट इज इलेक्शन भी होता है। ईच मेंबर हैज़ 6 years ऑफ टेन्योर इन राज्यसभा। राज्यसभा में 6 year का टेन्योर है। काउंसिल ऑफ स्टेट, द पावर ऑफ राज्यसभा इज लेस कंपेयर टू लोकसभा। लोकसभा की पावर से ज़्यादा पावर है राज्यसभा के पास। विच इज़ स्पेशल, सुपीरियर एंड डिसीसिव। सुपीरियर है, डिसीजन गुड डिसीजन टेकिंग है राज्यसभा में, एंड स्पेशल है। ओके,
राज्यसभा cannot be completely dissolved. राज्यसभा completely dissolve कभी नहीं होता, as it is permanent house. Okay everyone? So 3 topics I explained. Just go with these 3 topics please from your textbook as well and understand the explanation please.